यस, प्लस करेंगे, वेरी गुड। वी विल ऐड दीज टू नंबर्स। तो हम किस तरह देखें, अभी हम कर रहे हैं, पेज 62 है, ये आपने यानी नोट। ये सवाल कॉपी भी करना है? जी, ये कॉपी पे करने हैं, पेज 62, ये कॉपी वर्क है। ठीक है, ये हमारा एवरीडे क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, तो इसको अपने कॉपी पे करने हैं। तो किस तरह हम करेंगे, टोटल वेट ऑफ बैग। तो हमने क्या लिखना है, टोटल वेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो टोटल वेट हमने क्या लिख देना है, बैग का टोटल वेट कितना है, टोटल वेट, ये हमने फाइंड करना है। टोटल वेट इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास कितने बैग्स हैं, दो बैग्स हैं। हाउ मेनी बैग्स वी हैव टू बैग्स। एंड what are the values of weigh of rice, what is the value of weigh of rice? Yes, 15 whole, very good. 1 by 4 1 kilo, by 4. 15 whole, 1 by 4 kilogram. 7 whole 3 by 8. And what is the weight of sugar? It is 7 whole. Sir, Yes, 7 whole 3 by 8. very good. 3 by Now, 8. now you will tell me what is the first step. पहला step क्या होगा? What will be the first step? We will multiply 4 into 15 and plus 1 Very good. 4 into in it. 15. 4 into 15। अगर हमें 15 का टेबल नहीं आता तो हम रफ वर्क में क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, Answer is 60. यस, द सर आंसर 60 इज होता है? 60। अब 60 में 1 प्लस कर देंगे, 60 में 1 प्लस कर दें, देन इट 61। आंसर इज 61। So we will write 61 over 4. Now can you tell me what type of number is it? Is it proper fraction or improper fraction? सर improper fraction। Yes, very good. Improper fraction. It is improper fraction. Very good. Now, who will tell me what is 8 7 times? Just raise your hand and tell me what is 8 7 times. What is 8 7 times? Sir, 14. 8 7 times is 56। 56. Very good. 8 7 times is 56. And 56 plus 3, it is 59. Sir, 59 by 8. Okay. Now this is also improper fraction. Now what step we will do? अब क्या करेंगे? Sir, we will Yes. सर multiply. 4 को 2 से करेंगे? Now Sir, we we will multiply 4 by 2. 4 by 2. We will multiply 4 with 2. Okay. What is the reason why we multiply 4 with 2? Because, एट sir, we सर have to 8 change it. डिनोमिनेटर सेव करने के लिए, Yes. Very good. डिनोमिनेटर सेव करने के लिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 8 है, one denominator is 8 and the other denominator is 4. 4 is smaller than 8, so 4 can be changed into 8 when we multiply 4 with 2. Also we will multiply 61 with 2 plus this 59 over 8 will be same number. We will carry this number. Now can you tell me what is 4 2 times? What is 4 Sir, 2 times? 8. It is 8. Sir, Very good. And what is 61 2 times? So we will Sir, 1. multiply 61 with 2 in the rougher.
So 61 2 times is 122. So we will write 122 plus 59 by 8. Now you see denominator is same. So what type of fractions are these? Or is it like fraction or unlike fraction? Proper Like fraction like or fraction. yes, Sir, like very good. It is Like like fraction. fraction. It is like fraction. So what will we do? Now we will write Sir, we will plus 122. yes 122 plus 59. Now we add them 122 plus 59. Yes, Daniel, why you have raised your hand? 59 ऐड कर देंगे हम 122 में and the answer is Sir, 181. 181. 181. Very good. So we will write 181 over 8. अब हम इसको डिवाइड करेंगे रफ वर्क में. Now we will divide it 181 by 8 in the rough work. Can you help me? Can you help me? Okay. Now who will tell me what is table of 8 which is up to 18? So what number I should write in the quotient? 16. Okay, here I will write 16, but how many 8s is 16? It is 8 2s are 16. Now I will minus 8 minus 6. So what is the 8 minus 6? Sir, 2. 2. And I will carry this one. Sir, you will carry this one. And it will become 21. Now what is again I have to write? Sir, 2. Sir, 8 2s are 16. Again I have to write 8 2s are 16. Now again I have to minus 8. Now from 21, 6 cannot be minus. So I will borrow 1 from 2 and it will become 11. And 11 minus 6, it is 5. 5. Now I have to write the answer. Yes, very good. I have to write the Sir, answer. 22 whole 5 by 8. Very good. 22 whole 5 by 8. 5 by 8. So this is the total weight of sugar bag and rice bag. So the answer is 22 whole 5 by 8 kilogram. Okay. Now look at the question number 11. Is it clear to everyone? yes, sir. Okay, now I am going to erase this question. Yes, sir. Now read the question number 11. Who will read the Sir, may I question? read? Yes, you can read. Sir, I read. Yet this line A B in centimeters. How Yes. many centimeters is 1 by 3 of AB? ओके आपकी बुक में एक लाइन दी हुई है. उस लाइन की लेंथ कितनी दी हुई है बेटा? Sir, 1 by 3.
नहीं नहीं, 1/3 तो हमने फाइंड करनी है ना। एक लाइन आपको दी वन हुई बाय है, थ्री ऑफ एक लाइन बेटा आपकी बनी हुई है, इस तरह एक लाइन बनी हुई है, मैं देखें आपको शो करता हूँ, एक लाइन इस तरह ड्रॉ हुई हुई है ना, सर उसके ऊपर ए भी लिखा हुआ है। और उसके यस ऊपर सर ए भी लिखा हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इस लाइन के बारे में बताना है कि ये जो लाइन है, सबसे पहले इस लाइन की मेजरमेंट कितनी है, ए बी लाइन की, ये कितने मेजरमेंट की है। अगर आप चेक करें तो ये मेजरमेंट है, रूलर से चेक करके देखें, तमाम स्टूडेंट्स रूलर से चेक करके देखें इस लाइन की लेंथ कितनी है बुक पे। जी, लेंथ ऑफ ए बी कितनी है, चेक किया आपने रूलर से, रूलर से चेक करें, शाबाश। रूलर की हेल्प लें बेटा। लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, जी मैंने मेजर कर लिया है रूलर से, आप भी मेजर करके मुझे बताएं बेटा ये कितनी लेंथ है इसकी। सर 3। वेरी गुड, इट इज 3 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने बताना है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर इज 1/3 ऑफ ए बी, हमने ये फाइंड करना है। 1/3 ऑफ ए बी का 1/3 कितना होगा, ये हमने फाइंड करना है। लेकिन ए बी लाइन की वैल्यू कितनी हमने फाइंड कर ली है, कितने सेंटीमीटर ए बी लाइन की लेंथ हमने फाइंड की है, 3 सेंटीमीटर ना। रूलर से हमने अभी इसको कैलकुलेट किया तो ये 3 सेंटीमीटर है। और मैं मीटिंग लीव कर दूं, मेरी बहन की भी क्लास हो रही है। सर मुझे क्वेश्चन समझ आ गए। आ गए, ओके ठीक है। कौन बोल रहे हैं आप, नाम बता दें अपना। सर राजा मोहम्मद अली। ओके राजा मोहम्मद अली, आपको समझ आ गए, फिर ठीक है, यू यस कैन सर। लीव। ओके यू कैन लीव। तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका आंसर है। यहाँ तक क्लियर है सबका, क्वेश्चन नंबर 11 सबको क्लियर हो गया है बेटा। यस सर मुझे सर। ठीक से इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ किस क्वेश्चन की, सर क्वेश्चन 11 क्या समझ नहीं आई बेटा। आपको ऊपर आप फिगर में देखें ना, एक लाइन दी हुई है बुक में, ए बी। मेरे बेटा आपको एक लाइन दी हुई है ना, ए बी। आप यस रूलर, सर ओके आप रूलर अपना निकालें बैक से, बेटा आप रूलर ओके निकालें। सर ओके, अब ए बी लाइन की लेंथ को मेजर करें रूलर से, फिर मुझे बताएं कितनी लेंथ है इसकी। जी मेजर की बेटा आपने, करने वाली ओके कितने सेंटीमीटर है बेटा, 3 सेंटीमीटर है लेंथ। तो हमने यही लिखा है, लेंथ ऑफ ए यस सर बी इज 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी वाला हिस्सा देखें क्वेश्चन का, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इज 1/3 ऑफ ए बी। तो देखिए मैंने यही लिखा है
1/3 ऑफ ए बी। अब ए बी की कितनी वैल्यू हमें मालूम है? ए बी 3 की सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, तो ये हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे। अब 3 से कटिंग कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 आ जाएगा आंसर। तो ए बी लाइन की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी। ओके, हु विल रीड द क्वेश्चन नंबर 12? रीड द क्वेश्चन नंबर 12। सर मैं करूँ? करें। A boy had 25 marble. He lost 2/5 of this marble. How many marble did he lose? वेरी गुड। कितना मार्बल है उसके पास? Sir, 25. जी, तो हम लिखेंगे मार्बल। 25। जी, पहले हम मार्बल्स लिख लेते हैं कि कितने मार्बल्स हैं। मार्बल इक्वल 25, ठीक है। ही लॉस्ट 2/5 ऑफ हिज मार्बल। लॉस्ट का क्या मतलब होता है? सर इस्तेमाल हो जाना। नहीं, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना, खो जाना। बॉय लॉस्ट मार्बल। कितने मार्बल्स उसके गुम हो गए हैं? इक्वल, कितने मार्बल्स गुम हो गए हैं बेटा? Sir, 25 marble. सर 25। नहीं, 25 तो टोटल मार्बल्स है ना, तो उसके पास पहले 25 सर 2/5. सर 2/5। 25 25 ऑफ 2/5 ऑफ 25, 25 टोटल थे ना उसके पास, उसमें से 2/5 उसके गुम हो गए। तो हम लिखेंगे 2/5 ऑफ 25। अब 2/5 को एज इट इज लिख लेंगे। ऑफ किस में चेंज होता है बेटा? Sir, multiply में. वेरी गुड, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई 25। अब किस नंबर से कटिंग करेंगे आप? Sir, 5 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे. यस, वेरी गुड। 5 का टेबल 25 तक। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये कटिंग 5 करना। 5. ओके, अब कौन से नंबर रह गए हैं हमारे पास? 2, Sir, 2/5. 2 मल्टीप्लाई 5। So 2 multiply 5, what will be the answer? Sir, 10. Sir, 10. So it is 10। तो कितने मार्बल उसके गुम हो गए हैं? How many Sir, marbles? 10. सर 10। 10। 10 marbles। The boy has lost 10 marbles। Boy lost 10 marbles। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन रीड करेगा? क्वेश्चन नंबर, सर मैं मैं रीड करूं? जी करें रीड। Let me read too. करें। The length of one piece of string is 1/5 meters. वेरी What गुड। will be the total length of 4 such pieces of string? यस, तो हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ 4 पीसीस। 3. लेंथ ऑफ 4 pieces. लेंथ ऑफ 4 पीसीस इज इक्वल्स टू 4 पीसीस की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो हमारे एक पीस की लेंथ कितनी है? 1/4।
तो हम लिखेंगे 1/4, 1 पीस की लेंथ है और हमारे पास टोटल कितने पीसेस हैं? सॉरी, ये 1/5 है। दोबारा से मैं इसको शो करता हूँ। लेंथ ऑफ 4 pieces. Length of 4 pieces is equals to 1/5. So I write 1/5 of 4. Now again what will I do? Of को किस में चेंज कर देंगे बेटा? Multiply. मल्टीप्लाई में 1/5 Sir, multiply 4. multiply, sir. वेरी गुड। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, क्योंकि कटिंग नहीं होती है। 5 के टेबल में 4 आता है, No, No. sir. तो फिर 4 Sir. को 1 से फिर मल्टीप्लाई कर, तो 4 1 का 4 4 over 5. So this is the answer, 4 over 5. सर ओके इतना छोटा सा क्वेश्चन है। जी, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमारा टाइम ख़त्म होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लें। यहाँ तक आपने 13 क्वेश्चंस तक अपना काम कंप्लीट करना है, बुक नोटबुक। ओके सर। ओके, खुदा हाफिज़। ओके सर।